Good morning. Good morning, ma'am. Good morning. Good morning, Pritam. Good morning. Let's wait for 1 minute so that your other batchmates join. जागृति, Yes, ma'am. आपने लास्ट क्लासेस के लेक्चर्स देखे बेटा? नो मैम, अभी तो zoology के देख रही हूँ मैम. अच्छा, ओके, ठीक है. हाँ जी मैम. मैम हमारी बैकअप क्लासेस कब से स्टार्ट होंगी बॉटनी की? बॉटनी की क्लासेस स्टार्ट होंगी. आप जब तक Okay. इधर पढ़ो जो चैप्टर्स चल रहे हैं, हाँ और जी जो मैम. आपके छूट गए हैं वो उधर कवर कर लीजिएगा. ओके मैम. ओके. और वैसे ज्यादा छोटा नहीं था. आपने किस दो चैप्टर से स्टार्ट किया है? मैम मॉर्फोलॉजी से, anatomy और in plants. एनाटॉमी से. हाँ जी. अच्छा, ओके. आप वीडियोस भी देख सकते हो, प्लस अभी बैचेस स्टार्ट होंगे ना, तो उनमें हाँ कर जी मैम. लीजिएगा. ओके मैम. गुड मॉर्निंग मैम. गुड मॉर्निंग सानू. अब स्टार्ट कर दें? यस मैम. ओके. तो लास्ट क्लास में वी वर ऑन प्रोकैरियोटिक सेल. मॉर्निंग दीपक. तो बताओ बच्चों, कितना याद रहा, कितना भूल गए? बोलो मेरे नन्हे मुन्ने बच्चों, बोलो. कितना याद रहा, कितना भूल गए? गुड मॉर्निंग मनोज. अरे आज प्रीतम, why are you typing today? What has happened to your microphone? मैम प्रोकैरियोटिक के वेल डिफाइंड ऑर्गेनल्स नहीं थे. Good. तो लास्ट टाइम सानू ने मुझसे बोला था अबाउट मीजोसोम. सानू आपने ही बोला था ना मीजोसोम्स का? Can I ask? यस मैम. ओके. तो हम लोगों ने अच्छा खासा पढ़ लिया था प्रोकैरियोटिक सेल. Like they don't have well defined cellular organelles, है ना? They don't have well organized organelles, no well defined nucleus. So today one by one we will take each character. ये क्या था? प्लाज्मा मेम्ब्रेन बना दी मैंने, ठीक. और प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बाहर सेल वॉल.
this is what? Glycocalyx. Capsular slime. Glycocalyx. Okay, capsule slime. Term glycocalyx भी याद रखिए, because in 2017 this question was asked that which part of the exterior of the prokaryotic cell is responsible for the sliminess. Okay, what is this? What's this? Anybody? Tell me about this spoiled thing. Nucleus. Yes. Okay. And what these protrusions? And what is this circular thing? Bolo Jagriti. What is this Plasmid. circular? Okay. And these are some food vacuoles, these type of things. Okay. And the cytoplasm, of course. ओके, तो वॉल का हमने देख लिया था कि ग्राम पॉजिटिव एंड ग्राम नेगेटिव क्या होता है डिफरेंस, टू स्टेन नहीं लेते हैं। और एक चीज रह गई थी लास्ट क्लास में कि यू पीपल नाउ अंडरस्टैंड प्रॉपर्ली द डिफरेंस बिटवीन द पेप्टाइडोग्लाइकैन लेयरिंग ऑफ ग्राम पॉजिटिव and gram negative. You also know that gram negative have got one extra layer above the peptidoglycan layer. That layer is of lipopolysaccharide. Okay. So this lipopolysaccharide of the gram negative bacteria, they help them when you target the bacteria with some antibiotic. So most of the antibiotics are basically designed according to the peptidoglycan. If they are cell wall targeting antibiotics, then what happened? These gram negative bacteria survive because of their outer lipopolysaccharide layer. Okay. Then about mesosome. So these mesosomes are common in bacterial cell. Okay. What are they? They are the, wait a second, just wait. ओके प्रीतम, कोई प्रॉब्लम नहीं, बस तुम समझ लो अच्छे से और जस्ट डू योर रिविजन. So mesosomes, they are the inward producers of plasma membrane. अच्छा, जो mesosomes है, आपको ये सब पूछ लिया जाएगा और कुछ क्वेश्चन क्या पूछ दिया जाएगा कि in which type of bacteria they are commonly seen, gram negative or gram positive. Any idea, anyone? I'm gram positive. No. Mesosomes, अब ये तो हो गया कि कुछ भी बोल देना है, एक तो निकलेगा सही, है ना? Mesosomes are commonly seen in
gram negative bacteria. So write down everybody. वैसे तो होंगे, सब में हो सकते हैं, but they are commonly seen in gram negative bacteria. मैम लास्ट क्लास में आपने ग्राम पॉजिटिव में लिखवाया था. ग्राम पॉजिटिव लिखवाया था मैंने. Yes ma'am, mesosomes are prominent. Less prominent gram negative. अच्छा अच्छा, ओके, तो करेक्शन कर लो. They are commonly seen in gram negative bacteria. So sometimes they are associated with the cell wall of the dividing. Last class में तो हम मेसोसोम तक पहुंचे ही नहीं थे. They are commonly seen in gram negative bacteria. Sometimes they are associated with the cell wall of the dividing cell or with the chromosome. Then इनका फंक्शन क्या होता है मेसोसोम्स का? इनका फंक्शन, exact function is not yet known, but they may be helping in the formation of cell wall or chromosome DNA replication, or either they will be helping in respiration or in some secretion process, and moreover they increase the plasma membrane surface area. Then we have in some prokaryotic bacteria, just like cyanobacteria, there are membranous extensions into cytoplasm, and those extensions are called as chromatophores. What they are? Anybody? Chromatophores. So chromatophores, they are the just like mesosome, chromatophores पिगमेंट्स भी होते हैं. yes, very good. Chromatophores भी कुछ internal membrane system के part होते हैं, and they contain pigments. So they are extensive and complex in photosynthetic bacteria में ज्यादा होंगे, like cyanobacteria and purple bacteria. तो उसके बाद पर्पल बैक्टीरिया जैसे पर्पल सर्फल बैक्टीरिया. अब जो नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया होंगे, these membrane may form aggregates of spherical tubular vesicle that increase the surface area and allow great metabolic activity. ये हो गए आपके मेसोसोम क्रोमैटोफोर्स. देन कुछ और मॉडिफिकेशन अभी हम देख रहे हैं, जैसे लाइक ऑफ दिस फ्लैजिला. फ्लैजिला क्या होता है एक्चुअली? ये मूवमेंट के लिए, लोकोमोशन के लिए प्रेजेंट है, बट इसके स्ट्रक्चर में भी कुछ आपको प्लाज्मा मेम्ब्रेन, सेल वॉल, इनका पार्ट मिलेगा, क्योंकि इनके से ही होके निकल रहे हैं. और ये बेसल रीजन मिलेगा एक, और ये ऊपर का रीजन. तो ये क्या है, इसका थोड़ा सा स्ट्रक्चर देख लेते हैं फ्लैजिला का. जैसे ये दिस इज सम सेल एंड हियर इज योर फ्लैजिलम. तो कोई भी सबसे पहले क्या मिल रही है? प्लाज्मा मेम्ब्रेन की लेयर मिल रही है हमें अंदर में सेल के, और प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बाद क्या मिल रही है? पेप्टाइडोग्लाइकैन मिलेगी. पेप्टाइडोग्लाइकैन के बाद आउटर मेम्ब्रेन लगी हुई है. अब ये थिक, पतली, मोटी सेल टाइप के अकॉर्डिंग हो सकती है. अब ये जो नीचे ये गोल टाइप की चीज जो देख रही है, जहां से अटैच थे, वो क्या है? ऐसे लगे हुए हैं. बेसल बॉडी. बेसल बॉडी कैसे अटैच है? थिंग इट्स हियर.
ऐसे 2 रिंग्स बनी होंगी एंड ऑन दैट डिस्क टाइप का होगा, so this is the filament. This region is hook, और ये ऐसे लोकोमोशन कर सकता है, अपना पूरा अच्छे से घूम सकता है। ये चीज आउटर मेम्ब्रेन में होगी, जैसे आप देख पा रहे हो। दिस रीजन इज कॉल्ड एज स्लीव and this region, this is called as rod. Okay, and inner ring, basal body है, and of course outer ring. These both join to form basal body. तो फिलामेंट में क्या चीज आ गई? फिलामेंट के स्ट्रक्चर में, सॉरी फ्लैजेलम के स्ट्रक्चर में आ गया आपका 3 मेन चीजें आ गई, फिलामेंट, हुक एंड बेसल बॉडी। ये 3 चीजें आ गई, फिलामेंट, हुक एंड बेसल बॉडी। ओके, अब इसमें क्या है? ये मोस्ट ऑफ द पार्ट इज प्रोटीनेशियस। अगर ये पूछा जाए मोस्ट ऑफ द पार्ट का कॉन्फ़िगरेशन, तो मोस्ट ऑफ द पार्ट इज प्रोटीनेशियस। हुक में कुछ डिफरेंट प्रोटीन सब यूनिट्स होंगे एंड बेसल बॉडी कॉम्प्लेक्स पार्ट होती है फ्लैजेलम की एंड कंसिस्ट ऑफ 4 रिंग्स इन ग्राम नेगेटिव एंड 2 इन ग्राम पॉजिटिव। ये कुछ इनर कॉन्फ़िगरेशन है, बस वी जस्ट राइट डाउन कि 4 रिंग्स बेसल बॉडी में, 4 रिंग्स होंगे ग्राम नेगेटिव में एंड टू इन ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया। तो जो इनर रिंग है वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन से कनेक्टेड है। सिर्फ कंफ्यूजिंग क्वेश्चंस होते हैं। ये जो इनर रिंग है वो क्या है? ये दिस इनर रिंग, दिस इज कनेक्टेड विद प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ओके, और आउटर रिंग क्या है? वो पेप्टाइडोग्लाइकान पोर्शन की तरफ से फिक्स्ड है। तो ये हो गया। और ये क्या होता है? ये अरेंजमेंट जो है, दिस अरेंजमेंट परमिट्स द बैक्टीरिया टू रोटेट इट्स फिलामेंट इन 360 डिग्री। ऐसे ये 360 डिग्री रोटेशन कर सकते हैं, अंडुलेटिंग बैक एंड फोर्थ। whip movement you must have heard of. चलो, then come to पिलाई। पिलाई में एक स्पेशल नाम दिया गया है। पिलाई क्या होते हैं? elongated tubular fine structures, इसी तरह से छोटे छोटे जो ऊपर निकल आते हैं और स्पेशल प्रोटीन से बने होते हैं। उस प्रोटीन का नाम है दिस, ये है उस प्रोटीन का नाम, पिलिन। अच्छा, ट्रू पिलाई टिल नाउ आर ओनली रिपोर्टेड इन ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया। अभी तक के ट्रू पिलाई सिर्फ ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया में ही रिपोर्ट हुए हैं। ओके, और किस काम में आते हैं पिलाई? ये मैंने बताया हुआ है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में जो मेटिंग प्रोसेस होता है उसे कहते हैं कंजुगेशन। ठीक है, उसमें क्या होता है? पार्शियल डीएनए ट्रांसफर फ्रॉम बैक्टीरियल सेल, डोनर सेल से डीएनए का ट्रांसफर होगा टू अनदर बैक्टीरियल सेल। दोनों पिलाई के थ्रू अटैच हो जाएंगे एंड थ्रू दैट पार्शियल डीएनए इज ट्रांसफर। तो इसीलिए ये इलोंगेटेड है, ट्यूबुलर फाइन
स्ट्रक्चर्स होते हैं। इसके अलावा, पिलाई के अलावा फिम्बरी, तो ये पिलाई फ्लैजुलम के other than flagellum, this pili and this fimbri, these two are also surface structure of bacteria. तो पिलाई या फिम्बरी दोनों इंटरचेंजेबली ही नाम लिए जाते हैं for this. पिलाई, फिम्बरी, somewhat these two are just interchangeably named for the projections on the bacterial cell surface, but they are not used for locomotion. Or gram negative bacteria, of course, when they are similar, they are just names. Similar है but same नहीं है, थोड़ा बहुत से thickness, diameter, हल्का फुल्का change है. Then comes nucleoid region. सेल इतना वास्ट टॉपिक है ना कि उसकी डेप्थ में जितना जाओगे इट्स जस्ट लाइक एन ओशन, कि तुम डूबते चले जाओगे, फ्लो करते चले जाओगे. हम बस अभी टारगेटेड चीजें ही पढ़ेंगे यहाँ पे. न्यूक्लियाइड रीजन, इसमें क्या था, अभी आपको जैसे बता दिया है कि जेनेटिक मटेरियल इनका क्या है, सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए होता है. So is neither complexed with other molecules like proteins nor is packed in the chromosome. It is in the form of single circular DNA present. Center of the cell में उस एरिया को न्यूक्लियोइड रीजन बोलेंगे. जेनेटिक मटेरियल, जेनेटिक मटेरियल भी वही है, सिंगल सर्कुलर डीएनए. तो डीएनए इज एफिशिएंटली पैक्ड इन द सेल इन द न्यूक्लियोइड रीजन. कोई मेम्ब्रेन की बात नहीं हो रही है यहाँ पे. डीएनए इज एक्सटेंसिवली लूप्ड एंड coiled with the help of nucleoid protein. These proteins are different from the histone protein present in eukaryotes. तो एक चीज है यूकैरियोटिक सेल और प्रोकैरियोटिक सेल में कि नो ऑर्गेनेलीज लाइक द वंस फाउंड इन यूकैरियोट्स आर प्रेजेंट इन प्रोकैरियोट्स. जैसे जिस फॉर्म में यूकैरियोट में है उस फॉर्म में प्रोकैरियोट्स में नहीं है कोई भी ऑर्गेनेलीज, अगर नाम सिमिलर भी आ जा रहा है कोई भी, एक्सेप्ट फॉर राइबोसोम्स. राइबोसोम्स थोड़े बहुत यूकैरियोट में भी हैं और प्रोकैरियोट में भी दिख जाएंगे. बाकी कोई भी ऐसा ऑर्गेनेली उधर का नहीं है जो इधर भी आ जा रहा है यूकैरियोटिक वाला. ना ही गोल्गी बॉडी आ रही है, ना माइटोकॉन्ड्रिया, ना क्लोरोप्लास्ट, कुछ भी तो नहीं उधर का इधर है. एक राइबोसोम्स है जो थोड़ा बहुत सिमिलैरिटी के साथ उधर भी है इधर भी है, बट राइबोसोम में भी बहुत डिफरेंस है. इसका राइबोसोम कैसा है, 70S का है. अब राइबोसोम आ के बाद में क्या, सब राइबोसोम जो है वो डिस्पर्स पड़े रहते हैं साइटोप्लाज्म में, और जब प्रोटीन का काम आएगा तो इस तरह से आ जाएंगे. जैसे ये नीचे का आपका हाथ है और ये ऐसे पैक हो जाएंगे और इसके बीच से आपका प्रोटीन मैन्युफैक्चर हो जाएगा. ये 70S का राइबोसोम है, ऐसे है. ठीक है, ये क्या है, इसमें से लार्जर सब यूनिट होगा वो 50S का होगा और जो स्मॉलर सब यूनिट होगा उसका वो 30S का होगा. अच्छा, अब एक टर्म और, आपके नीट में तो हमेशा वो जो चीजें अलग से आ रही हैं वो उसी पे फोकस होता है. एक टर्म है पॉलीराइबोसोम. एनीबॉडी, एनी आइडिया? मैम ये mRNA से बने होते हैं.
देखो राइबोसोम का काम क्या होता है बेटा, प्रोटीन का मैन्युफैक्चर करना। हमारे पास क्या है, अगर हम बैक्टीरिया है सपोज, हमारे पास है डीएनए। अब प्रोटीन डीएनए से क्या होगा, आरएनए में कन्वर्ट होगी और आरएनए से कन्वर्ट होने के बाद वो एमाइनो एसिड्स बनेंगे जिससे प्रोटीन बनेगी। तो प्रोटीन बनने का एक लंबा सा प्रोसेस होता है, वो 3 पार्ट में है, ट्रांसक्रिप्शन, ट्रांसलेशन, ये सब चीजें प्रोसेस लंबे बनेंगे जब पढ़ाएंगे आपको प्रोटीन में। इसमें क्या है, इसी बीच में जब एक प्रोसेस होता है तो आरएनए वाला स्टेज भी आएगा, मैसेंजर आरएनए, ट्रांसफर आरएनए, ये सब आएंगे। तो बेसिकली काम वही है राइबोसोम का। जैसे ये राइबोसोम की लार्जर सब यूनिट लगी हुई है और ये स्मॉलर लगी हुई है। जब प्रोटीन बन रही है तो यहाँ से भी एमआरएनए पास हो सकता है, ये प्रोटीन के टाइम पे पढ़ाया जाएगा आपको, सो डोंट वरी। लेकिन पॉलीराइबोसोम, ये एक सिंगल राइबोसोम आपको दिखाया मैंने, ठीक है। ये पॉलीराइबोसोम का काम क्या है, पॉलीराइबोसोम कभी-कभी क्या करते हैं ना, सेवरल राइबोसोम आर अटैच्ड टू अ ये एमआरएनए। आप ठीक लिंक तक पहुंची, लेकिन ये एमआरएनए से बनी नहीं होगी क्योंकि ये वही राइबोसोम्स हैं। ऑफन सेवरल राइबोसोम्स आर अटैच्ड टू सिंगल एमआरएनए, जैसे ऐसा कुछ स्ट्रक्चर बन जाएगा, जैसे ये लार्जर सब यूनिट, स्मॉलर सब यूनिट। ये है, बहुत सारे हैं, जैसे एक में से बन के निकल रहा था, ये क्या हुए, कई के बीच में से निकल के एक एमआरएनए फॉर्म होगा और क्या होगा, ये अटैच हो जाएंगे और यहां से प्रोटीन बन बन के निकल रही है, पॉलीपेप्टाइड्स। So often several ribosomes are attached to single mRNA, यानी messenger RNA. So these ribosomes simultaneously translate the message in mRNA into protein and decipher mRNA from one end to other. Such a complex consisting of number of ribosomes on a single RNA, single messenger RNA, is called polyribosome और पॉलीसोम। ये भी नाम याद रखिए, ये सेम चीज के लिए है। फिर ये हो गया, ये सबको क्लियर हो गई बात। फिर आ जाती हैं उसमें कुछ इंक्लूजन बॉडीज। इंक्लूजन बॉडीज में वही चीजें आपकी क्या क्या हो सकती हैं, फूड ग्रैन्यूल्स हो सकते हैं ना, और ये सब चीजें हो सकती हैं। मतलब जो रिजर्व मटेरियल है बैक्टीरिया में, that is stored in the cytoplasm as inclusion bodies और storage granules. Storage food granules में आपके ग्लाइकोजन के ग्रैन्यूल हो सकते हैं, अगर साइनोबैक्टीरिया है तो साइनोफाइसियन ग्रैन्यूल्स हो सकते हैं। ये याद रख लेना कि साइनोफाइसियन ग्रैन्यूल का नाम आए तो उसे इंक्लूजन बॉडी से मैच करना है, या अगर कुछ मिसमैच में चूज करना है तो ये दोनों मैच है, इंक्लूजन एंड साइनोफाइसियन ग्रैन्यूल्स। अच्छा, उसके बाद आ गए गैस वैक्यूल्स। गैस वैक्यूल्स क्या होते हैं, ये these are organic inclusion bodies that usually occur in cyanobacteria, purple green photosynthetic bacteria, and they are also found in some aquatic free floating forms called planktonic forms. ये aggregates होते हैं number of small hollow cylindrical gas vesicles के, क्या है ये, गैस वेसिकल्स के एग्रीगेट्स होते हैं, बस दैट्स इट, यू हैव टू रिमेंबर।
इतना काफी है आपके लिए। इसके अलावा कुछ इनऑर्गेनिक इंक्लूजन्स भी होते हैं। ये क्या थे? ऑर्गेनिक थे। तो कुछ इनऑर्गेनिक भी होते हैं। इसमें क्या आ जाएंगे? इसमें दो मेजर इनऑर्गेनिक इंक्लूजन्स हैं, उनका नाम है वॉलेटिन ग्रैन्यूल्स एंड सल्फर ग्रैन्यूल्स। ये भी सेल में हो सकते हैं। वॉलेटिन ग्रैन्यूल्स किसके बने होते हैं? फॉस्फेट के। ये फॉस्फेट ग्रैन्यूल्स होते हैं। ये रिजर्वायर होते हैं किस चीज के? फॉस्फेट के, ऑफ कोर्स। और सल्फर किसके होते हैं? सल्फर ही के होंगे। किसमें होंगे? They store sulfur and present in some bacteria only, जिनमें सल्फर का कुछ काम होगा, जैसे कि आपका सल्फर बैक्टीरिया, पर्पल सल्फर बैक्टीरिया, ये सब हो गया। अब ये खत्म। अब आ जाते हैं यूकैरियोटिक सेल। प्रोकैरियोटिक सबको क्लियर हो गया है ना? यस मैम। ओके, वैसे भी बहुत सिंपल सी चीज है Yes. प्रोकैरियोटिक। गुड। अब हम लोग यूकैरियोटिक पे आते हैं। यूकैरियोटिक सेल्स में आपके प्लांट सेल भी आ जाएंगे, आपके एनिमल सेल भी आ जाएंगे। कोई मेजर डिफरेंस है प्लांट सेल एनिमल सेल में? मैम इसमें वेल डिफाइंड ऑर्गेनल्स प्रेजेंट हैं। प्लांट सेल एनिमल सेल दोनों में ही होंगे, दोनों यूकैरियोटिक है। अब जो भी डेफिनेशन है वो उनके काम के अकॉर्डिंग, उनके टाइप ऑफ वर्क के अकॉर्डिंग है। एक बहुत बड़ा डिफरेंस है प्लांट सेल एनिमल सेल में कि एनिमल सेल में, चलो स्टेप बाय स्टेप दिखाऊंगी, अभी नहीं बताऊंगी, तुम लोग खुद बोलने लगोगे फिर अपने आप ही कि ये है, याद आ जाएगा सबको। सबसे पहले सेंट्रियोल, सेल वॉल। सेंट्रियोल, हाँ, सेंट्रियोल भी होता है, एनिमल सेल में होता है, प्लांट में नहीं होता है। कुछ सेल वॉल का डिफरेंस है, और प्लांट सेल में एक बड़ा सा वैक्यूल है, कुछ ऐसा है, इस तरह का भी तो है डिफरेंस। और भाई yes क्लोरोप्लास्ट मैम, लार्ज आपका, वैक्यूल प्रेजेंट। एनिमल्स में नहीं होते। क्लोरोप्लास्ट तो नहीं भूल सकते। तो यूकैरियोटिक सेल पे क्या देखा कि शेप जो है, शेप उनके फंक्शन के अकॉर्डिंग डिफाइन है। अगर वो नर्वस सिस्टम में है तो नर्व सेल है ना। ट्रैकीड अपना हो सकता है अगर प्लांट की तरफ बढ़ रहे हैं। डब्ल्यूबीसी में है तो कुछ अमीबाइड शेप के हो जाते हैं। रेड ब्लड सेल्स हैं, और एपिथेलियल सेल हमारे कॉलमनर शेप के हैं। मीजोफिल सेल्स आपके पैलिसेड वाले भी हो सकते हैं, स्पंजी भी हो सकते हैं। तो ये अलग अलग इनके शेप्स हो सकते हैं अकॉर्डिंग टू देयर फंक्शन। अब इनमें से जैसे भी बताया, डब्ल्यूबीसी को अमीबाइड बोला, तो अमीबा और डब्ल्यूबीसी दोनों ही इरेगुलर होते हैं और कोई शेप नहीं होता है। मसल सेल सिलिंड्रिकल और लॉन्ग होती हैं, नर्व सेल्स आर वेरी लॉन्ग। देन एक एनिमल सेल पे चलते हैं। लेंथ एंड ब्रेथ की कुछ प्रॉब्लम अगर आ जाए तो प्लीज छोटा कर दो थोड़ा सा। सही प्रोपोर्शन में जा रहा है।
नहीं यार, वेट, फाइनली बन गई। तब क्या था, ये है प्लाज्मा मेम्ब्रेन। और क्या है, कुछ जैसे आप लोग एपिथेलियल सेल लाइनिंग में या इंटेस्टाइनल में पढ़ रहे होंगे, कुछ माइक्रोविलाई टाइप की चीज भी कुछ पढ़ रहे होंगे ना। और कुछ सुसाइडल बैग्स जो होते हैं आपके, क्या, लाइसोसोम। और क्या हो सकता है, अच्छा यहाँ पे आपका न्यूक्लियस पे आते हैं। अच्छा भाई, ये एक सुपरफिशियल व्यू होता है किसी भी सेल का। अब यूकैरियोट में तो भाई कहाँ से, बैक्टीरिया के वाले जो भी किंगडम है आपका, उसके बाद से जितना भी आ रहा है सब यूकैरियोटिक सेल्स हैं, वो सारे सेम तो अंदर से हो नहीं जाएंगे, कुछ कुछ तो थोड़े बहुत डिफरेंसेस आते ही रहेंगे। ये क्या लगे हुए हैं इनके पे, राइबोसोम्स लगे हुए हैं। राइबोसोम्स का काम प्रोटीन सिंथेसिस में। तो ये क्या होंगे, ये क्या स्ट्रक्चर में ड्रॉ कर रही हूँ, बताओ। बताओ, कोई बताओ भाई, राइबोसोम्स थे तो ये क्या थे। गोल्गी apparatus। मैम एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम था। यस, और वो भी रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है ना। यस मैम। है ना, कौन सा, रफ। ये भी कुछ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ही है, ये है इनके स्मूथ। और ये द गोल्गी जहां से वेसाइकल्स आ रही हैं, आ भी रही हैं, जा भी रही हैं। न्यूक्लियोलस, और इधर की तरफ कुछ
ऐसी सी चीज, ये क्या है, एक दूसरे के राइट एंगल पे सेंट्रियोल्स, ऐसे तो ये वैक्यूल्स हो गए, और एनिमल सेल है, क्या होगा, माइटोकॉन्ड्रिया तो होगा ही होगा। तो चलो देखते हैं। पावर हाउस बोलते हैं सेल का, बोलते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया पावर हाउस बोलते हैं। ये इसको, फिर ये जो बनी हुई है ये चीजें, ये एक्चुअली न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है। और ये जो अंदर ये जाल बना हुआ है, यह है इसका क्रोमैटिन नेटवर्क। और ये जो न्यूक्लियोलस इधर की तरफ दिखा दिया आपको, इधर लिख देती हूँ। So this together, nuclear membrane, chromatic network, and nucleolus. This is nucleus. Okay. This together is nucleus. और रफ था तो ऑब्वियस सी बात है इनके ऊपर राइबोसोम्स लगे होंगे। ओके, गोल्गी बॉडी हो गई, माइटोकॉन्ड्रिया भी हो गया, एनीथिंग लेफ्ट। और ये मैंने बताई प्लाज्मा मेम्ब्रेन। अब क्या मैंने इसके ऊपर सेल वॉल बनाई? नहीं बनाई ना? नो मैम। No, ma'am. ये एनिमल से छोटा कर दो, तुम लोगों को स्क्रीनशॉट लेना होता है। अब हो जाएगा। Then तब क्या है इसमें, यही मेन चीज है। ये हो गया, ये आपका सेल का सपोज, ये हो गई इसकी प्लाज्मा मेम्ब्रेन, और ये रीजन जो था ये हो गया इसका न्यूक्लियस, ये साइटोप्लाज्म। सिर्फ इतने पे फोकस करें अगर तो साइटोप्लाज्म, न्यूक्लियस, पूरा मिला के प्रोटोप्लाज्म। ओके, प्लांट में एक प्रोटेक्टिव कवरिंग होती है सेल मेम्ब्रेन के बाहर, जिसे सेल वॉल कहते हैं, जो इसमें नहीं है। चलो ये चीज हो गई। प्लांट सेल और एनिमल सेल में एक मेजर डिफरेंस क्या आ जाएगा? अभी वो सब पता चल जाएगा, बता देती हूँ। सबसे पहली चीज, एनिमल सेल्स दे डोंट हैव सेल वॉल, their cells are covered only by plasma membrane. They have centrosome near the nucleus. They don't have chloroplast. एक जनरली एनिमल सेल्स में छोटे छोटे वैक्यूल्स होते हैं, छोटे छोटे वैक्यूल्स प्रेजेंट होते हैं एनिमल सेल में। प्लांट सेल में एक बड़ा सा आपको वैक्यूल मिलेगा, इस तरह से कुछ होगा।
पूरा डिटेल में तो आई गेस बनाने की जरूरत नहीं है प्लांट सेल को, क्योंकि बाकी तो फीचर्स वही सब आएंगे। और क्या होता है, बिग वैक्यूल, ये हो गया। और ये आपके क्लोरोप्लास्ट पड़े होंगे फोटोसिंथेटिक मशीनरी के लिए। दिस इज सेल वॉल एंड अब माइटोकॉन्ड्रिया भी हो सकता है, तो होगा ही होगा। एक साइड में जैसे वैक्यूल थोड़ा अंदर की तरफ जा रहा है जहाँ पे, वहां पे आपका न्यूक्लियस होगा, न्यूक्लियोलस होगा, ठीक, ये हो जाएगा। इधर एक तरफ यहाँ पे ऐसे पड़े होंगे गोल्जी बॉडी, ठीक है, इसमें से वेसाइकल्स निकल रही होंगी, प्लस इसके एक तरफ आपके एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होगा, इसका नेटवर्क होगा, ऐसे ही बिखरे बिखरे स्मूथ एंडोप्लाज्मिक नेटवर्क पड़े होंगे। और ये ऐसा चैनल टाइप का जो बनता है, ये रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। और एक सेल से दूसरे सेल को जोड़ने के लिए प्लाज्मोडेस्माटा कनेक्शंस प्रेजेंट हो सकते हैं। ऐसे इनकी सेल वॉल ज्वाइन कर गए यहाँ से, ठीक है, इंटरकनेक्टिंग। लाइसोसोम्स यहाँ पे भी होंगे, छोटे छोटे से होंगे। और क्या छोड़ा मैंने, राइबोसोम्स होंगे, साइटोप्लाज्म तो ऑफ कोर्स है ही, पेरोक्सिसोम्स ये भी देखेंगे। तो ये कुछ प्लांट सेल। प्लांट सेल में एडिशनल सेल वॉल बनाई है बाहर, ये सेल मेम्ब्रेन थी। और normally have a large central vacuole, so they have several scattered Golgi body। जो मैंने अभी बनाई Golgi body, कैसी बनाई, scattered बनाई है ना। तो वो जो इनकी Golgi body है, एक्चुअली इनकी जो Golgi body होती है क्या कहलाती है, डिक्टियोसोम्स। ओके, जो गोल्गी कॉम्प्लेक्स लाइक सब्सटेंस है एक्चुअली वो क्या कहलाता है, डिक्टियोसोम्स। ये ऑल ओवर द सेल रहेगा। फिर बहुत सारे मॉलिक्यूल्स उसके मेम्ब्रेन में एम्बेडेड रहते हैं दैट बाइंड, ट्रांसपोर्ट स्पेसिफिक मटेरियल इन स्पेसिफिक डायरेक्शन। इट आल्सो एक्ट एज रिसेप्टर साइट फॉर रिकॉग्नाइजिंग stimuli like various chemicals and hormones। ये प्लांट सेल में हो सकते हैं। अब एनिमल सेल प्लांट सेल की जो डिफरेंस की बात कर रहे थे वो देखें। एनिमल सेल में सेंट्रोसोम दिखाया, प्लांट सेल में एब्सेंट था। एनिमल सेल में प्लास्टिड्स एब्सेंट होते हैं और प्लांट सेल में प्लास्टिड्स जो होते हैं वो प्रेजेंट होते हैं। जैसे एक प्लास्टिड हो गया आपका क्लोरोप्लास्ट। अच्छा, एनिमल सेल में एक अच्छा सा प्रॉपर, अभी जैसे बता दिया, गोल्जी कॉम्प्लेक्स होता है। प्लांट सेल में अभी क्या बताया कि उनमें सेवरल ऐसे पड़े रहते हैं स्कैटर्ड अनकनेक्टेड यूनिट जिन्हें यू कॉल एज डिक्टियोसोम्स। तो इजीली डिस्टिंग्विशेबल नहीं है सेल में ये।
अच्छा, एनिमल सेल में नंबर ऑफ स्मॉल वैक्यूल्स दिखाए थे. प्लांट सेल, मैच्योर प्लांट सेल हैज अ लार्ज सेंट्रल वैक्यूल and cytoplasm forms a thin layer around it. ये डिफरेंसेस हो गए. प्लांट सेल एनिमल सेल का डिफरेंस समझ में आ गया. अब हम लोग प्लाज्मा मेम्ब्रेन जल्दी से देखते हैं. प्लाज्मा मेम्ब्रेन, प्लाज्मा मेम्ब्रेन का कोई आइडिया? प्लाज्मा मेम्ब्रेन तो दोनों में ही है ना, प्लांट में हो चाहे एनिमल में हो. बताओ बच्चों, प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बारे में कोई आइडिया? लिपिड बायलेयर से बनी होती है. वेरी गुड. तो जैसे सानू ने बोला कि लिपिड बायलेयर की बनी होती है. दीपक आज पहुंच चुको. मैम फ्लूइड मोज़ेक फ्लूइड मोज़ेक मॉडल था प्लाज्मा मेम्ब्रेन का. किसने दिया था? मैम निकोलसन एंड सिंगर. सिंगर एंड निकलसन ने 1972 में. तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो है वो बायोलॉजिकल मेम्ब्रेन में आएगी. वो कवर करेगी सेल को चारों तरफ से. और उसके बाद बायोलॉजिकल मेम्ब्रेन एक और क्या हो सकती है? वो हो सकती है सब सेलुलर मेम्ब्रेन्स, जो कि ऑर्गेनेलीज को कवर करती हैं. अब प्लाज्मा मेम्ब्रेन का इंपॉर्टेंट फंक्शन, पहली चीज, ये एक्सचेंज कराती है सेल और उसके एक्सटर्नल एनवायरनमेंट से. दे कंट्रोल द एक्सचेंज. ठीक है. स्पेसिफिक हो सकती है, सेलेक्टिवली परमिएबल, जिसको चाहती है आने देती है, जिसको चाहती है जाने देती है, अपनी नीड के रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग. ये नहीं कि कोई भी चला आए, कोई भी चला जाए. और क्या है? साइटोप्लाज्म को इनक्लोज करके रख रही है. सर्टेन कैरियर मॉलिक्यूल्स, जैसे मैंने अभी बताया, वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन में अंदर एम्बेडेड रहते हैं. वो क्या है अभी हम मेम्ब्रेन बनाते हुए देखेंगे. और सर्टेन रिसेप्टर साइट के तौर पे भी प्लाज्मा मेम्ब्रेन एक्ट करती है. प्लाज्मा मेम्ब्रेन के मॉडल्स पे हम आते हैं. तो कई मॉडल आए. एक मॉडल आया, किसने दिया था? फर्स्ट मॉडल लेट 1930 में दिया था. किसने दिया था बच्चों? डेनिली डेवसन ने. ठीक है, डेनिली और डेवसन ने. इन्होंने एक हाइपोथेसिस दी प्लाज्मा मेम्ब्रेन की, जो लिपिड बाइलेयर की आप बात कर रहे हो. इन्होंने बोला कि ऐसे ये फॉस्फोलिपिड्स लगे हुए हैं. ये क्या इनकी टेल है, टेल हुई, और ये इनका फॉस्फेट हेड हुआ. ये फॉस्फोलिपिड हो गई ये चीज. फॉस्फोलिपिड की बाइलेयर तो हो गई. ठीक है. और उनके ऊपर प्रोटीन्स लगी हुई हैं. ठीक है, प्रोटीन मॉलिक्यूल्स है ये. ये डेनेलियर डेवसन का मॉडल है 1930 में. ये कहते हैं कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन 3 लेयर की बनी हुई है. एक आपका बायोमोलिकुलर लिपिड लेयर, जो कि सैंडविच, इसे सैंडविच मॉडल भी कहते हैं नॉर्मली. ये सैंडविच है किसके बीच में? 2 प्रोटीन की लेयर के बीच में. एक ये प्रोटीन की लेयर और एक ये प्रोटीन की लेयर.
उसके बीच में आपकी फॉस्फोलिपिड की जो बाइलेयर है वो सैंडविच हो गई है। लिपिड मॉलिक्यूल्स ये बोल रहे हैं कि उस प्रोटीन के राइट एंगल पे लगे हुए हैं। ठीक, टोटल थिकनेस इन्होंने बताई मेम्ब्रेन की अबाउट 8 नैनोमीटर, और लिपिड की जो लिपिड है इसमें पड़ी हुई उसकी अबाउट 6 नैनोमीटर, प्रोटीन की इसमें से अबाउट 1 नैनोमीटर, लमसम थिकनेस 8 नैनोमीटर की। इसके बाद एक दूसरा मॉडल आया, वो किसका मॉडल था? रॉबर्टसन का। सब याद रख लो बच्चों, सब पूछा जाता है। तो ये रॉबर्टसन ने दिया 1965 में। ठीक, उन्होंने क्या करा था, लमसम वही बात थी जो आपके डेनियल डेविस, इन्होंने डेनिली और डैप्सन ने दिए था। रॉबर्टसन ने भी वही सब बोला। उन्होंने क्या करा था, खूब स्टडी कर ली थी इधर उधर की, बस। He studied the membrane under electron microscope and he confirmed the trilaminar appearance के 3 लेयर्ड होते हैं। उन्होंने जितना अवेलेबल डाटा था उसको कंबाइन किया और इन्होंने दिया यूनिट मेम्ब्रेन कॉन्सेप्ट। क्या बोला कि जितनी बायोलॉजिकल मेम्ब्रेन्स हैं वो ट्राइलेमिनर स्ट्रक्चर है। ठीक है, ट्राइलेमिनर जितनी बायोलॉजिकल मेम्ब्रेन, जैसे अभी बताई मैंने, प्लाज्मा मेम्ब्रेन बोली और एक सब सेलुलर मेम्ब्रेन बोली थी जो कि ऑर्गेनेलीज को कवर कर रही थी। इन्होंने बोला कि ऑल बायोलॉजिकल मेम्ब्रेन्स हैव अ ट्राइलेमिनर स्ट्रक्चर, so the 3 layers have the same arrangement जो अभी डेनिली डैप्सन में था, जो उन्होंने प्रपोज किया था कि आउटर 2 लेयर ऑफ प्रोटीन एंड मिडिल लेयर इज ऑफ फॉस्फोलिपिड। इन्होंने थोड़ा सा बोला कि टोटल थिकनेस थोड़ी कम कर दी, बोल दिया कि 7.5 नैनोमीटर होती है। एक और चीज बोल दी कि जो ट्राइलेमिनर है, अब ऐसे बना दे रही हूँ कुछ, ये तो प्रोटीन का हो गया, ये बीच में आपका ये लिपिड के बाइलेयर हो गए, और उसके बाद फिर से ये प्रोटीन वाले थे। तो इन्होंने क्या करा, कुछ उसमें थोड़ी सी क्या बताया, कुछ इन्होंने ऐसे बताया। इन्होंने बोला कि जो लाइट, ऐसे एक सेकंड यहाँ पे बता दो, कलर तो दिख रहा है ना सबको? यस मैम। तो ये क्या हो गई, बीच वाली कैसी है, लाइट है, और ये डेंस है और ये भी डेंस है। तो ये जो डेंस आउटर लेयर है ये हो गई प्रोटीन की। ठीक, लाइट वाली मिडिल लेयर किसकी है, लिपिड की, और फिर डेंस वाली किसकी है, प्रोटीन की, और ये इनका ऐसे साइटोप्लाज्म हो गया। बस बात सब इन्होंने वही कही थी, बस उसको एक कॉन्सेप्ट बना दिया था, यूनिट मेम्ब्रेन कॉन्सेप्ट। अच्छा, फॉस्फोलिपिड क्या होते हैं, किसी को आइडिया है? बार बार फॉस्फोलिपिड का नाम आ रहा है। बायोमोलिक्यूल्स तो आप लोगों ने पढ़ लिया है ना?
सब चुप हो जाते हैं एकदम। बोलो, फॉस्फोलिपिड के बारे में बोलो, कुछ तो बोलो। हिमांजनी, हर्षिता, Yes, ma'am. 40% in cell membrane, phospholipids. फॉस्फोलिपिड हाँ सेल मेम्ब्रेन में है, लेकिन 40%. 40% नहीं, मैं पूछ रही हूँ क्या स्ट्रक्चर की आइडिया है? एनीबॉडी? चलो मैं बताती हूँ। तुम लोगों ने फैटी एसिड देखा? फैटी एसिड्स देखे तुम लोगों ने बायोमोलिक्यूल्स में? फैटी एसिड्स क्या होते हैं? Yes, ma'am. लॉन्ग चेन होते हैं। किसके बने होते हैं? हाइड्रोजन के और कार्बन के, है ना? फॉस्फेट लिपिड किसका बना होगा? जो फॉस्फोलिपिड है, ये हम लोग पढ़ रहे हैं, हमें पता तो होना चाहिए कि फॉस्फोलिपिड है क्या। Fatty acids. हाँ, इसमें क्या होता है, लिपिड है तो फैटी एसिड का ही बना होगा। लिपिड मतलब फैट, कोई जो आपका कॉम्प्लेक्स रूप है उसी को लिपिड बोलते हैं। अब कुछ फॉस्फेट ग्रुप अटैच हो जाएगा, तो इसमें क्या है, ये बना होता है 2 फैटी एसिड्स का। क्या लग गया इसमें? 2 फैटी एसिड लग गए, एक फॉस्फेट ग्रुप लग गया, And one glycerol group. अरे यस, ग्लिसरॉल मॉलिक्यूल। ये होता है फैटी एसिड। तो जो फॉस्फेट ग्रुप होता है, उसपे जो फॉस्फेट ग्रुप होगा उसपे आपके 4 ऑक्सीजन अटैच हो जाते हैं, और यही 2 थिंग्स जो है ये आपस में कनेक्ट करती है ग्लिसरॉल से। अब क्या हो गया, इसकी वजह से इन पे कुछ चार्ज आ जाता है, ठीक है। तो फ्लूइड मोज़ैक मॉडल पे अब हम लोग आते हैं, जो दिया है किसने? सिंगर एंड निकलसन ने। कब दिया गया? 1972 में। ये क्या कहते हैं कि सेल मेम्ब्रेन अपना कुछ चेंज करती रहती है, नेचर, तो डायनामिक चेंजेस होते रहते हैं। ये कहते हैं क्वासी फ्लूइड नेचर ऑफ लिपिड enables lateral movement of protein within the overall bilayer. This ability to move within the membrane is measured by its fluidity. कि कुछ ये ऐसे ऐसे कुछ कर सकते हैं, उसका स्ट्रक्चर भी जैसे ये तो आपकी लिपिड बाइलियर लगी हुई है। Yes, I see.
ये बनी हुई है, और इसमें प्रेजेंट हो सकते हैं कुछ कोलेस्ट्रॉल, यहाँ पे जैसे लेबल करते हैं इसे। ये तो पता चल गया कि ये लिपिड बाइलेयर है ना, फॉस्फोलिपिड बाइलेयर। इसमें क्या हो सकती है आपकी, कुछ ट्रांस मेम्ब्रेन प्रोटीन्स हो सकती हैं। ट्रांस मेम्ब्रेन मतलब जो मेम्ब्रेन के इस पार से लेके पूरे उस पार तक निकल जाए। कुछ और हो सकती हैं, ग्लाइकोप्रोटीन हो सकती हैं कुछ, और कुछ इंटीग्रल प्रोटीन पड़ी हो सकती हैं। और ये क्या है इनके, इस तरह से ये इनकी कार्बोहाइड्रेट या शुगर की कुछ ऐसे हो सकता है। एंड ये ऐसे ऐसे ये क्या है, फिलामेंट्स होते हैं साइटोस्केलेटन के। साइटोप्लाज्म, और भी प्रोटीन्स हो सकती हैं। तो लिपिड बाइलेयर जो होगी वो सेंट्रल लिपिड बाइलेयर होगी, दो लेयर्स की बनी होगी, फॉस्फोलिपिड्स की, एक स्पेसिफिक मैनर में अरेंज रहती है। दे आर आल्सो कॉल्ड एज एम्फीपैथिक। आंसर सी का फर्स्ट पार्ट, द रेड प्लैनेट। अरे ऐसे ना वो वाला वन डाल दो, रोमन वाला, उसे डॉट डालते जिसके ऊपर। जागृति, म्यूट योर माइक। यानी एम्फीपैथिक मींस के इनमें हाइड्रोफिलिक और हाइड्रोफोबिक दोनों रीजन्स होंगे। हाइड्रोफिलिक मतलब वाटर लविंग, हाइड्रोफोबिक मींस जो वाटर से डर जाए, वाटर हेटिंग। तो पोलर एंड्स interact with water and so are called hydrophilic, and non-polar ends they don't interact with water and are called hydrophobic. तो ये आपके क्या हो गए, हाइड्रोफिलिक रीजन, और ये आपका हाइड्रोफोबिक रीजन। ओके, बस इतना ही है। इनके बीच में कुछ प्रोटीन्स पड़ी हो सकती हैं, जैसे कि ग्लोबुलर प्रोटीन। जैसे ग्लोबुलर प्रोटीन्स में क्या हो जाएगी, पेरिफेरल या एक्सट्रिंसिक प्रोटीन्स जो कि सरफेस ऑफ मेम्ब्रेन पे होंगी। इंटीग्रल या इंट्रिंसिक प्रोटीन्स जो कि पार्शियली या टोटली बरीड होती है मेम्ब्रेन में। अच्छा, इसके अलावा इनमें कुछ चैनल प्रोटीन्स हो सकती हैं थ्रू विच द वाटर soluble materials can pass. तो कुछ इंटीग्रल प्रोटीन्स penetrate the lipid bilayer exposed to one surface only, और कुछ जो इनके प्रॉपर है, जैसे ट्रांस मेम्ब्रेन प्रोटीन दिखाई, इस पार से उस पार चली जा रही है। तो जो प्रोटीन्स इनमें पड़ी होती हैं, अभी जब आप लोग पढ़ोगे प्लांट फिजियोलॉजी, उसमें सेल ट्रांसपोर्ट जब पढ़ाऊंगी तब उसमें और अच्छे से बताऊंगी कि जो प्रोटीन्स होती हैं जिनमें एक्ट एज कैरियर,
चैनल, रिसेप्टर। कैरियर क्या होते हैं? जो ट्रांसपोर्ट ऑफ मॉलिक्यूल टू एंड फ्रो द मेम्ब्रेन कर ले पूरा। चैनल क्या होते हैं? दे पैसिवली ट्रांसपोर्ट मॉलिक्यूल across the membrane, and receptor they act as single molecule and transmit information into the cells. Transmembrane proteins अभी बता रही थी कि they form a major component of protein that float or in the lipid bilayer. So they extend through lipid bilayer as a single helix. उसमें एक एग्जाम्पल है, एक कैरियर प्रोटीन हो सकती है ट्रांसमेम्ब्रेन, उसी में का एक एग्जाम्पल है ग्लाइकोफोरिन। ये एक ट्रांसमेम्ब्रेन कैरियर प्रोटीन है ग्लाइकोफोरिन। तो फंक्शंस वही, प्रोटेक्शन तो होते ही है, प्लस कैरियर, रिसेप्टर, एंजाइम्स, ये सब भी हो सकते हैं इनमें। अब जो ट्रांसपोर्ट अक्रॉस द सेल मेम्ब्रेन है, ये आपको नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ाऊंगी। अभी आप सेल वॉल देखिए, प्लांट सेल का स्ट्रक्चर। उसमें अच्छा, प्लांट सेल में जो सेल वॉल है वो सेलुलोज की हो सकती है, पेक्टिन, लिग्निन, हेमीसेलुलोज, ये सब। बैक्टीरिया की कैसी थी प्रोकैरियोट्स में? उसमें पॉलीसेकेराइड था अमाइनो एसिड्स के साथ, और एक स्ट्रेंथनिंग कंपोनेंट था जिसे म्यूरिन बोलते हैं। फिर फंजाई की सेल वॉल पे आते हैं अगर हम, तो उनकी तो पॉलीसेकेराइड किसकी है? काइटिन पड़ा हुआ है बहुत ज्यादा, है ना, विद अ लेयर ऑफ ग्लाइकेंस। यस। और एल्गी में जो कॉमनली फाउंड सब्सटेंसेस होते हैं जैसे कि सेलुलोज, गैलेक्टिन्स, मैनिन्स, मिनरल्स, कैल्शियम कार्बोनेट, ये सब हो गया। अब प्लांट सेल वॉल की बात करते हैं हम लोग। इसमें सेलुलोज, पेक्टिन, लिग्निन, हेमीसेलुलोज, ये सब हायर प्लांट की सेल वॉल में हो सकता है। अच्छा, प्लांट सेल वॉल में एक फिक्स्ड शेप एंड साइज होता है ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ रिजिड सेल वॉल। रिजिड सेल वॉल क्या है? एक तरह का एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स उस पे है। तो सेल वॉल इज प्रेजेंट आउटसाइड द सेल मेम्ब्रेन, सफिशिएंटली थिक होती है, स्ट्रॉन्ग होती है, रिजिड होती है, अबाउट 0.1 नैनोमीटर। अच्छा, प्लांट सेल वॉल को 3 पार्ट में आप डिवाइड कर सकते हैं। आउटसाइड से स्टार्ट करेंगे तो आ जाएगा मिडिल लैमेला, प्राइमरी सेल वॉल और सेकेंडरी, ये प्राइमरी, ये सेकेंडरी सेल वॉल। ठीक है, तो मिडिल लैमेला का काम क्या होता है? बाहर से स्टार्ट कर रहे हैं सेल वॉल की जो मिडिल लैमेला है, it holds the neighboring cell walls together and is composed of sticky gel-like material formed of magnesium and calcium pectate. फिर प्राइमरी सेल वॉल आ गई, ये उसके बाद होगी। It is formed during the, अब जो 2 सेल्स हैं, सपोज देखो ऐसे, ये 2 सेल है और ये दोनों सेल जोड़ रहे हैं एक दूसरे को, तो ये 2 सेल को जोड़ रहा है ना, ये क्या हो गया? मिडिल लैमेला। ठीक है, फिर प्राइमरी सेल वॉल, इट इज फॉर्म ड्यूरिंग द सेल डिवीजन, साइटोकाइनेसिस में बन जाती है। इट इज लेड ऑन द मिडिल लैमेला। इट इज कंपैरेटिवली thin and permeable and allows the young cells to grow. It consists of cellulose microfibrils.
और जो मिडिल लैमेला बताई वो ज्यादातर मैग्नीशियम और कैल्शियम पेप्टेट की होगी। अच्छा, एक और चीज होती है प्लाज्मोडेस्माटा। ये क्या होता है? बोलो, रुक क्यों गए? सेल वेल सेल वॉल जब कंटिन्यूअस नहीं है, एक जगह पे इंटरप्ट कर रही है बाय माइन्यूट पोर्स, उन माइन्यूट पोर्स को वी कॉल एज प्लाज्मोडेस्माटा। The thin strands of cytoplasm pass through it, and this allows the movement of substance between the adjacent cells. So these plasmodesmata are living connection between the neighboring plant cells. जैसे जो आपने फ्लोएम में सीव प्लेट की पोर्स देखी थी, they are derived from plasmodesmata. मतलब एक तरह का फाइन साइटोप्लाज्मिक कैनाल है ये, बस, जो कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन से लाइंड रहता है। Sometimes plasmodesmata, they often has endoplasmic reticulum tubule, and then called as here that tubule is called as desmotubule. So they bring continuity of living matter and the cytoplasm. अब दो चीजें, सिम्प्लाज्म और एपोप्लाज्म। सिम्प्लाज्म क्या होता है? लिविंग मैटर होता है, एंड साइटोप्लाज्म दैट फॉर्म्स कंटिन्यूटी बिटवीन द टू सेल्स जस्ट लाइक इन प्लाज्मोडेस्माटा। एपोप्लाज्म क्या होता है? इट इज द नॉन लिविंग मैटर इन द इंटरसेलुलर स्पेसेस, जो कि सेल में हो जाती है ना, बिटवीन द सेल्स, उसमें जो इंटरसेलुलर स्पेसेस हो जाती है सेल्स के बीच में, उनका जो नॉन लिविंग मैटर होता है वो एपोप्लाज्म होता है। देन कम टू एनिमल सेल्स में क्या होता है बच्चों के प्लाज्मा मेम्ब्रेन तो है नहीं, सॉरी प्लाज्मा मेम्ब्रेन तो है, सेल वॉल तो है नहीं, तो सेल वॉल क्यों, उसकी कमी मिटाने के लिए प्लाज्मा मेम्ब्रेन के ऊपर एनिमल सेल्स हैव अ filamentous layer of oligonucleotides and glycoproteins. तो एनिमल सेल की प्लाज्मा मेम्ब्रेन के ऊपर एक फिलामेंटस लेयर ऑफ oligonucleotides and glycoprotein प्रेजेंट होती है आउटसाइड द मेम्ब्रेन। ये प्रोसेस करते हैं कॉम्प्लेक्स ऑफ यूनिकली पैटेंट ब्रांच चेन। उस लेयर को भी स्ट्रेंथनिंग मिलती है कैल्शियम सॉल्ट से, सिलिकॉन से, कुछ इस तरह के मटेरियल से। अच्छा, फिर अब आ गया हमारा मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट, एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम। एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम में कौन कौन आ जाएगा, किसी को पता है? रेटिकुलम, एंडोमेम्ब्रेन और सेल मेम्ब्रेन। बताती हूँ कि जो एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम में क्या है, सारे जितने आपके मेम्ब्रेनस ऑर्गेनेलीज हैं वो अपना अपना काम कर रहे हैं, दे आर डिस्टिंक्ट इन देयर फंक्शन, बट कुछ उसमें से दे आर कंस्टिट्यूटेड टुगेदर एज एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम बिकॉज ऑफ देयर
सिमिलैरिटी इन द फंक्शन एंड कोऑर्डिनेशन। तो इसमें जो आ जाएगा वो एक आ जाएगा आपका एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, एक आपका गोल्गी कॉम्प्लेक्स, एक Lysosomes. लाइसोसोम और एक वैक्यूल्स। ओके, अब क्यों नहीं माइटोकॉन्ड्रिया आया? क्योंकि माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट, पेरोक्सीसोम्स, इनका फंक्शन जो है इनके साथ कोऑर्डिनेट नहीं कर रहा है, इस वजह से ये एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम का पार्ट नहीं है। अब इसमें जैसे बताया एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में क्या है? अच्छा, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम फर्स्ट गिवन बाय साइंटिस्ट, एनीबॉडी? के लिख दिया मैंने, पी भी लिख दिया। चलो, साइंटिस्ट का नाम याद रखिए आप लोग, ठीक है? कीथ पोर्टर इन 1953। तो टर्म एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, टर्म की बात हो रही है यहाँ पे, was given by Keith Porter in 1953. He identified a fine reticulum or network present in the endoplasm of cell. उसके लिए he has given this term. Endoplasmic reticulum is a complex system of membranous sacs that run through the cytoplasm of all eukaryotic cells except endoplasmic reticulum कहाँ नहीं होगा? बताइए, यही तो पूछा जाएगा, इस तरह की चीजें। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम नहीं होता है मैमल्स की आरबीसी में, नहीं होता है रेड ब्लड सेल में, एग्स में नहीं होगा, और एम्ब्रियोनिक सेल्स। ठीक है, तो it's a complex system of membranes running through the cytoplasm of all eukaryotic cells except RBC of mammals, eggs and embryonic cell. कैसा होता है? It's an irregular network of membrane tubules forming a continuous sheet enclosing a internal space. अब तीन फॉर्म में हो सकते हैं, एक ये जो तुम लोग देखते हो, इनके ऊपर ये ऐसे इसको कहते हैं सिस्टर्नी। क्या कहते हैं? सिस्टर्नी। ठीक है, और एक और चीजें होती हैं, उनमें वेसाइकल्स हो सकती हैं, या फिर wait a second, I got it, और उनपे हो सकती हैं ऐसी ट्यूब्यूल्स। ठीक है, तो सिस्टर्नी कैसी हो गई? ऐसे ये elongated है, फ्लैट है, सैक लाइक अनब्रांच टाइप के स्ट्रक्चर्स है, and 40 to 50 micrometer in diameter, generally arranged in parallel in bundles interconnected to each other. और क्लियर देख लो, और ज्यादा देखो तो ऐसे बिल्कुल।
वेसिकल्स राउंड होती हैं, ओवल टाइप की शेप की हैं, ट्यूब्यूल्स ब्रांच इरेगुलर स्ट्रक्चर्स हैं। अब एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बताया कि दो टाइप का होता है, रफ और स्मूथ। अच्छा, दोनों ही एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम आपके स्मूथ हो चाहे रफ हो, दोनों इंटरकनेक्टेड होते हैं। जो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है वो आपके न्यूक्लियस के साथ इंटरकनेक्टेड, एक स्ट्रक्चर बना के दिखाती हूँ यहाँ पर, ये रब कर दे रही हूँ। Wait a second. So, why is the pen not working? Just wait a second. Wait a second, I'm coming, okay? Okay, I'm back. There was some technical issue actually. Now, एक फिगर बना रही हूँ, ठीक है? I'm audible to you people now? Yes, ma'am. Yes, ma'am. ये क्वेश्चन बच्चों आ सकता है, जैसे ये न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस तुम लोग समझ लो, उसको नहीं बढ़ाऊंगी। यहाँ पर ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बता रही थी, ये ऐसा जो ये न्यूक्लियस से जो अटैच है आपका, अब उसमें ऑब्वियस सी बात है डॉट्स पड़े होंगे, ये वाला एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ये आपका रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होगा, ठीक है? और उसके बाद एक स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होगा, ये आपका अटैच हो जाएगा गोल्गी बॉडी की तरफ, ओके? तो स्मूथ और रफ दोनों इंटरकनेक्टेड है। रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इज कनेक्ट इन कंटिन्यूअस विद द न्यूक्लियर मेम्ब्रेन and smooth endoplasmic reticulum with Golgi complex and plasma membrane. इधर से प्लाज्मा मेम्ब्रेन की तरफ है ये स्मूथ वाला, और इस तरफ से ये गोल्गी कॉम्प्लेक्स की तरफ है, ठीक है?
फंक्शंस ऑफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या होते हैं? They give mechanical support by forming a network in the cytoplasm, or they forms an intercellular transport system and helps by exchange of molecule from one part of the cell to another. उनमें बहुत सारे enzymes होंगे and they perform various metabolic activities. Smooth endoplasmic reticulum क्या synthesize करेगा? Lipids and steroids. रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का रोल क्या है इन द सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन्स? ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है. तो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम सिंथेसाइजेस लिपिड्स एंड स्टेरॉइड्स, और रफ आरईआर आपका हेल्प्स इन द ट्रांसपोर्ट एंड सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन्स. क्लियर? फिर यहीं पे एक चीज होती है गोल्गी कॉम्प्लेक्स. गोल्गी कॉम्प्लेक्स किसने बताई थी? Who observed Golgi complex first? बोलो बच्चों. कैमिलो गोल्गी. कैमिलियो गोल्गी, वेरी गुड. उनका नाम ही बता दे रहा है ये चीज, उनके नेम पे ही रखा ही गया नाम. कैमिलो गोल्गी इन 1898. किसमें, किस सेल में मिली थी ये? नर्व सेल ऑफ बार्न आउल. ये सब छोटी छोटी चीजें याद रखो. इसमें नर्व सेल ऑफ बार्न आउल में. अब ये दो फॉर्म में हो सकती हैं. दो फॉर्म का मतलब आइदर ये लोकलाइज्ड हो सकती हैं, आइदर ये डिफ्यूज हो सकती हैं. लोकलाइज मतलब लोकलाइज जैसे ये वर्टिब्रेट या एनिमल सेल्स जो हमारे प्रॉपर है उनमें न्यूक्लियस के करीब, जैसे अभी ये दिखाया मैंने, ये लोकलाइज्ड फॉर्म है. और ये अभी मैंने प्लांट सेल्स की बात करी थी थोड़ी देर पहले कि उसमें जो गोल्गी कॉम्प्लेक्स है वो डिक्टियोसोम के फॉर्म में होते हैं. क्यों होते हैं? क्योंकि वो प्रॉपर लोकलाइज नहीं है, वो डिफ्यूज फॉर्म में होते हैं वहां पर, तो इसलिए डिक्टियोसोम. प्लांट सेल फंजाई सीलिएटेड प्रोटोजोअन्स, यहां तक की बात है. प्लांट सेल फंजाई ciliated protozoans, they lack well defined Golgi apparatus. So in these the cisternae may have one or more sacs in a diffuse form scattered in the cytoplasm called dictyosomes. अच्छा, इनमें भी कुछ ऐसी चीजें हैं. देखो, इनके दो फेस होते हैं, एक ट्रांस फेसिंग, एक सिस फेसिंग. ये ट्रांस फेसिंग, ये बड़े बड़े यहाँ पे आ रहे हैं, बड़े बड़े वैक्यूल्स दिखेंगे जो ट्रांस फेसिंग होता है. ये अंदर की बात तुम लोग जान लो गोल्गी कॉम्प्लेक्स की, जो कि बहुत पूरा, अक्सर आप पूरा पूरा एमएससी कर जाते हो, पीजी कर जाते हो, नहीं पता चल पाता है. ये इधर छोटे वैक्यूल्स के बने हैं, इधर बड़े वैक्यूल्स के बने हैं. ये क्या चीज थी? ये इसकी सिस्टर्नी थी. हाँ, और ये कैसे बने हुए हैं? स्मॉल वैक्यूल्स आ रहे हैं. इधर क्या है? लार्ज वैक्यूल्स आ रहे हैं. ये कौन सा फेस है? ये सिस फेस है, मतलब फॉर्मिंग फेस, जिधर वैक्यूल बनेंगे. और ये कौन सा फेस था इसका? ये ट्रांस फेस है, मतलब मैच्योरिंग फेस, जिधर आपके वैक्यूल्स मैच्योर हो रहे हैं. ओके, मतलब ये ट्रांस फेस, ये सिस फेस, ये क्या चीज शो कर रही है कि जो गोल्गी एपरेटस होता है उसमें एक डेफिनेट पोलैरिटी होती है.
है ना. The two ends or the phases of sterni are called forming phase and maturing phase. Forming phase आपका हो गया cis phase और maturing phase आपका हो गया trans phase. ये एक दूसरे से डिफरेंट होते हैं. So sacs on the forming phase differ from the sacs on the maturing phase in thickness, content and in the degree of the vesicle formation. क्या अपीयर होता है कि जो मटेरियल्स होते हैं बेसिकली दे आर ट्रांसपोर्टेड फ्रॉम द सिस फेज टू द मैच्योरिंग फेज. सिस फेज से बन के मैच्योरिंग फेज की तरफ से बड़े वैक्यूल्स में ये ट्रांसपोर्ट हो जाते हैं. गोल्गी बॉडी का इंपॉर्टेंट फंक्शन क्या है? कलेक्शन, पैकेजिंग, सिक्रीशन. यस, जैसे ये वेसाइकिल सभी जैसे ट्रांसफेज से सिक्रीट कर रही है ना, कलेक्ट करा, पैकेज करा और जैसे सिक्रीट कर दिया. तो ये चीज आपकी हो गई. फिर लाइसोसोम्स क्या होते हैं? लाइसोसोम्स एक्सीडेंटली ही डिस्कवर हो गए थे बाय क्रिस्टियन डी डूवी. यहां बता देती हूं. So they were accidentally discovered by Christian D. Doof in 1955 while working on rat liver cells. ये रैट के लिवर सेल के ऊपर काम कर रहे थे. कुछ एंजाइम्स इन्हें आइसोलेट करने थे और भाई इन्हें पता चल गया कि लाइसोसोम्स भी होते हैं. तो अब ये क्या है? They are present in all animal cells and only in few plant cells. जैसे कि few plant cells में कौन हो जाएंगे? Yeast, fungi, green plants नहीं, green unicellular organisms. ज्यादा अबंडेंट कहाँ होते हैं? मैक्रोफेजेस में, which perform digestive function like in liver, pancreas, white blood cells. engulf करके डाइजेस्ट करने का काम करते हैं ना मैक्रोफेजेस, वहां ज्यादा अबंडेंट होते हैं. तो ये हो गए आपके लाइसोसोम्स. ओके, लाइसोसोम्स डन. लाइसोसोम्स के बाद आता है आपका माइटोकॉन्ड्रिया. पावर हाउस बोलते हैं. और माइटोकॉन्ड्रिया के बाद आएंगे राइबोसोम्स. ये सब हम लोग नेक्स्ट क्लास में लेंगे. सीलिया, फ्लैजिला, न्यूक्लियस, न्यूक्लियर एनवेलप, न्यूक्लियोलस और क्रोमैटिन. ये सब हम लोग नेक्स्ट क्लास में इस चैप्टर को फिनिश कर देंगे. ओके, आज वाला चैप्टर समझ में आ गया? Yes. इतना स्लो, बोरिंग था? Yes, ma'am. लिटिल बोरिंग है ना? बोरिंग तो है बेटा, लेकिन स्कोरिंग भी है. Yes, ma'am. ये Got it. बॉटनी से अच्छे सारे क्वेश्चंस मिलते हैं जो बहुत स्कोरिंग होते हैं. बोरिंग है लेकिन याद हो जाएगा. तो आप लोग ये जो भी नाम लिखवाए सब चीजें याद कर लीजिएगा. ठीक है? ओके, नेक्स्ट Yes, क्लास में इसको फिनिश कर देंगे और फिर अपने अच्छे चैप्टर पे आएंगे हम लोग जो बिल्कुल बोरिंग नहीं होगा. Okay, बाय बाय. Thank you, ma'am. Thank you, ma'am. Bye, ma'am.
ma'am.